హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు ఐవ్యూ ఎంటర్టైన్మెంట్స్. ఇక ఆర్జీవీకి 2 డేంజరస్ గర్ల్స్ ఉన్నారు కదా. సో ఆ 2 డేంజరస్ గర్ల్స్లో ఒక డేంజరస్ గర్ల్ ఇప్పుడు నాతో పాటు ఉంది. తనతో మాట్లాడదాం ఈ మూవీ గురించి. హాయ్ నైనా. నమస్కారం. వావ్, నమస్కారం. Hi, how are you? ఐమ్ ఫైన్. యూ డిడ్ంట్ లర్న్ తెలుగు టిల్ నౌ? I will try, but actually sometime Tamil project, Kannada project na, so I'm mixed all language. ఆర్జీవీ గారు మీకు తెలుగు ఇంకా నేర్పించలేదా? ఆర్జీవీ సార్ డిడ్ంట్ టీచ్ తెలుగు? No, sir actually Hindi dialogue, but dubbing Telugu, Tamil, Kannada. ఓకే. Yes. వైల్ డూయింగ్ షూటింగ్ హీ స్కూల్డ్ యూ? Sir, యా. very strict. Very, I mean, some, school times, cool teacher, very dangerous teacher. So there's dangerous. Yeah. Do you remember any situation? At what situation he scolded you? Lots of, all project actually. But मेरी बेटी सनी लियोन बनना चाहती है one day shooting. But my father character मकरान sir and mother दिव्या. तो मकरान sir का 6 evening flight. So sir I planning के morning and 12 pack up. Morning call time 7. And 9-page dialogue. And before I'm shooting beautiful. So one day shooting. But actually it's a big dialogue tha, then I'm just confused. So sir is very angry. And mic damn them. So because of flight Makaran sir. So I'm very scared. But sir actually problem kya hai na ke dialogue means same dialogue bolna hai, not cut. Same means same and one take. So sometime I'm very scared and very confused. तो बहुत सारे से सीन है एंड वेरी एंग्री. एंड सर का प्लस पॉइंट है कि कभी ऑल एक्टर या एक्ट्रेस पे कभी एंग्री नहीं होता है. मतलब ऑलवेज वो सम गुस्सा जो भी टीम होते हैं ना, एडी उनके ऊपर हो जाते हैं. पर आर्टिस्ट को कभी गुस्सा नहीं करता बिकॉज आर्टिस्ट मूड चेंज दे मीन्स यस. Okay, actually everyone will think Arjvi likes girls, so that's why in the shoot also he won't scold girls. Is that true? एक्चुअली आरजीवी को गर्ल्स के बीच में ही प्लस पॉइंट. आई मीन विदाउट गर्ल्स आरजीवी नो, बिकॉज ऑफ बॉयज़ के बीच में आई थिंक नो. आरजीवी मीन्स गर्ल्स के बीच में ही होना चाहिए. दिस इज एक्चुअली प्लस एंड गुड लुक. Yes. And even yesterday's Ask Anything press meet also, one male anchor is there. Why male he kept? Sorry? Actually yesterday Ask Anything press meet is happened, right? In that 2 anchors are there. One is female and other one is male. Right. Chandu garu. Yeah. Okay. Actually everyone thought 2 anchors are also girls, but one is male. Everyone was shocked. Yes, because actually boys actually RGB fans, because of sir actually always straightforward answer, very, I mean answer means RGB का होना चाहिए वैसा वाला है. तो मैंने yesterday जितने सारे फैंस को देखा, all are RGB फैंस. वो जो एटीट्यूड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आंसर होता है ना, आई थिंक इसके लिए ऑल बॉयज या गर्ल्स फैंस हैं. How you felt for the press meet because that many students? एक्चुअली ऑनेस्टली बताओ तो सबसे बेस्ट yesterday इवेंट था. बिकॉज In your whole life? नॉट होल लाइफ, बिकॉज समटाइम हम लोगों ने कॉलेज में भी ब्यूटीफुल के टाइम पे कॉलेज पे भी हम लोगों ने किया. बट स्टूडेंट या यंग जनरेशन बॉयज़ एंड गर्ल्स में जो एनर्जी है ना, आई थिंक समटाइम हम लोग इंटरव्यू करते तो सेम क्वेश्चन सेम आंसर, सो समटाइम बोरिंग. बट वो जो उनके जो साउंड होते हैं ना, आई मीन जो फैंस के जो एनर्जी होते हैं ना, तो समटाइम आर्टिस्ट को भी हम लोग को भी एक अलग डबल एनर्जी हो जाता है. तो ये बहुत इंजॉय किया एक्चुअली. Okay. And in this movie even lesbians means 2 females, right? We know that. But in that also you performed as male. How is that feeling? एक्चुअली मैंने जितने सारे प्रोजेक्ट किए ना, ऑलवेज अ डिफरेंट कैरेक्टर. जब एग्जाम्पल स्पोर्ट्स कैरेक्टर, मल्ली मोदलाइंदी, परंपरा या वंगा बीटी, जो भी कैरेक्टर मैंने किया है, चरित्रहीन, तो ऑलवेज मैं सेम कैरेक्टर रिपीट नहीं करती हूँ. एंड जब भी स्क्रिप्ट मेरे पास ऑफर आता है, मैं सबसे पहले देखती हूँ कि क्या कैरेक्टर है. जैसे अभी धानम रिलीज हुआ है मैक्स प्लेयर में, वो भी एक नक्सलाइट कैरेक्टर है. मैं ऑलवेज चैलेंजिंग कैरेक्टर मैं पसंद करती हूँ. अगर मुझे लगे कि बोरिंग कैरेक्टर, कॉलेज स्टूडेंट, वेरी रोमांटिक, मैं अवॉइड करती हूँ. हाँ, अगर करना है तो कोई गुड एक्टर के साथ करो जो सॉन्ग में रहेगा. बट
अगर ऐसा मुझे कैरेक्टर मिले, ऑलवेज चैलेंजिंग कैरेक्टर. सो जब डेंजरस माई स्टम कैरेक्टर मुझे लगा टू गर्ल्स, बट मेरा कैरेक्टर मेल कैरेक्टर है. जब हम लोग गर्ल्स होते तो बॉडी लैंग्वेज अलग होती है, जब बॉयज़ होते तो बॉयज़ के ऐसे एटीट्यूड होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं. तो वो मैंने ऑब्जर्व किया है कि बॉयज़ कैसे होते हैं. तो मुझे था कि इसमें मुझे थोड़ा सा अलग बॉडी लैंग्वेज देना है, एटीट्यूड देना है, एंड ऑफ कोर्स वो किया मैंने. For that, do you practice for some time, or how many days you practice for that male performance? नो प्रैक्टिस, बिकॉज नो मेरे ऑलवेज जब भी प्रोजेक्ट होते हैं ना, मैं जस्ट सम टाइम मैं अपने साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, ओनली नाइट, एंड उसमें मैंने थोड़ा रिसर्च करती हूँ, बिकॉज मॉर्निंग टू आई एम बिजी, बट नाइट टाइम मैं स्क्रिप्ट में नाइट को पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरा मॉर्निंग कॉल टाइम रहता है. एंड मेरे जितने सारे कैरेक्टर रिसर्च होते हैं, जैसे नक्सलाइट हो, स्पोर्ट्स कैरेक्टर, मैं कभी ट्रेनिंग नहीं लेती हूँ, बट मेरा अलग रिसर्च होता है. आई मीन रात को मैं साइलेंट माइंड पे ऑलवेज मैं कैरेक्टर को ऑब्जर्व करती हूँ. तो डेंजरस के टाइम पे भी मैंने थोड़ा हॉलीवुड जितने सारे लेस्बियन कैरेक्टर होते हैं उनके जो मुझे लगा था कि आई मीन हेयर कट होगा, थोड़ा टॉम बॉय, बट सर ने बोला नो, टू गर्ल्स. सो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि गर्ल्स में भी एटीट्यूड होते हैं, ऐसा नहीं है नहीं होते. तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे कैरेक्टर किया, एंड गर्ल्स एटीट्यूड में कभी भी कर सकती हूँ, आई मीन कभी भी प्रोजेक्ट कर सकती हूँ. बट डेंजरस में जब मुझे मिला मेल कैरेक्टर प्ले करने के लिए, तो मैंने 2 days ट्राई किया, देन उसके बाद कैरेक्टर इन्वॉल्व हो गए. And we heard you imitate RGB. Is that right? या मुंबई, यस, फर्स्ट ना मुंबई. मुंबई Even in the whole shoot also. बिफोर, आई मीन In the movie shooting also, you imitate RGB, like how to perform. yes, always, because actually सर ने जब मुझे स्क्रिप्ट नरेशन किया था, तो मैंने कुछ सर कैसा होगा, आई मीन जस्ट वन एक के बॉडी लैंग्वेज, आई मीन मतलब कैरेक्टर कैसा है, बिकॉज मुझे वो आई मीन ऑब्जर्व करना है, वो चीज़ करना है. तो जब भी मैं सीन करती हूँ, आई मीन मैं ऑलवेज जो कोई भी आउटसाइड भी मैं प्रोजेक्ट करती हूँ, अलग प्रोडक्शन हाउस, मैं ऑलवेज डायरेक्टर को पूछती हूँ कि कैरेक्टर डिज़ाइन क्या है. तो मेरे लिए इजी हो जाता है, बिकॉज मैं कुछ और सोच रही हूँ, डायरेक्टर कुछ डिफरेंट सोच रहा है. तो मुझे होता है कि डायरेक्टर एंड आर्टिस्ट में बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज डायरेक्टर का थिंकिंग क्या है, मेरा थिंकिंग तो मैच करना ज़रूरी है. एक बार अगर मैंने डायरेक्टर को समझ गया कि उनकी सोच वैसा है, तो मेरे लिए वो कंटिन्यू ईजी होगा. सो मैं ऑलवेज ऑल डायरेक्टर को जब भी मेरा सीन होता है या डायलॉग होता है, तो मैं उनको एक्सप्रेशन दिखाती हूँ कि ये मैंने सोचा है. समटाइम मैच हो जाता है, समटाइम नो, थोड़ा सा चेंजेस होता है. तो ये एक्शन के बिफोर मैं प्रैक्टिस कर लेती हूँ डायरेक्टर के साथ एक बार. Okay. Yeah. If you have to tell RGB in a single sentence, means what you will say? Very Except honesty, those things. honest, straightforward, very cool attitude, and I think very different actually character actually, है ना? Very different character. I think match करना not easy. तो आई थिंक सर इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड तो है ही, एंड वेरी हटके एटीट्यूड, या वेरी आई मीन गुड एटीट्यूड एक्चुअली बहुत कम लोगों के पास होते हैं. वेरी नॉट अ नॉर्मल एवरीडे वैसे दिखने मिल जाता है, वेरी अलग कैरेक्टर. Any similarities for you and RGB? यस, ऑलवेज फिल्म को लेके डिस्कस करना, ऑलवेज फिल्म के बारे में सोचना, ऑलवेज कैमरा, ऑलवेज मूवी शूटिंग, मतलब नॉट आउटसाइड के पर्सनल लाइफ भी होते हैं, बट सच बताओ कि पर्सनल लाइफ से ज़्यादा ऑलवेज के शूटिंग एक्टिंग, आई मीन ऑलवेज यस सेम मैच इज यही है कि बट हाँ मैं सर के जैसे नहीं हूँ, क्योंकि सर का थोड़ा अलग माइंड है, और ऑफकोर्स मैं फीमेल हूँ तो मेरा माइंड भी अलग होगा, बट या मैच इज कैमरा. यस. Who is your favorite hero? तेलुगु में बोलूँगी तो विजय देवरकोंडा, एंड यस अल्लू अर्जुन. यस, You have to say one, miss. वन, सबकी अलग अलग क्वालिटी है. No, you have to say one. You have to say one. Then विजय. Vijay Devarkonda. Yes. So I think you want to do a movie with Vijay Devarkonda next, right? Not
ऑफ कोर्स अगर आई नो जिस दिन मैं विजय के साथ अगर मैंने कभी लकीली काम किया तो मैं आई मीन मेरा डायलॉग भूल जाऊंगी बिकॉज इट बिग फैन एक्चुअली एंड बॉलीवुड में शाहरुख खान एंड रणवीर कपूर Okay. या Favorite director, miss? डायरेक्टर ऑल डायरेक्टर I expected other answer. Yeah. Even हाँ. all of the members ఇక్కడ కూర్చున్న అందరూ కూడా అదే చెప్తున్నారు. नो एक्चुअली ऑफ कोर्स आरजीवी सर ने मुझे लॉन्च किया, सर के साथ मैं काम कर रही हूँ, वो तो सर है ही फिर, बट कभी समटाइम होता है कि कुछ कैरेक्टर मुझे प्ले करना है तो सर आई थिंक सर का जो ना मतलब कुछ अलग होते सब्जेक्ट, बट मुझे जैसे कैरेक्टर प्ले करना है वो और भी डायरेक्टर है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ऑफकोर्स आरजीवी सर एंड ऑल डायरेक्टर एक्चुअली, क्योंकि मैंने भी और भी प्रोडक्शन के साथ काम किया है, तो ऑफकोर्स बिकॉज मेरी चरित्रहीन बिग हिट और मुझे अवार्ड मिला 1 2 3 भी है, तो वो भी एक डायरेक्टर है, सो ऑल डायरेक्टर एंड ऑफ कोर्स आरजीवी सर. If you won't become actor, miss, then what you will become in your career? Now you are an actor. If you not become an actor, miss, what you will become? Maybe IAS, like. आई थिंक स्पोर्ट्स गर्ल या तो मिलिटरी ऐसे सब या Okay, that's why you're choosing that much action stories, right? एक्चुअली सर ने मुझे लॉन्च किया वंगावीटी टाइम, तो माई करियर स्टार्टिंग ऑलवेज सीरियस कैरेक्टर, तो बैक टू बैक सीरियस ऑलवेज मेरा कैरेक्टर सीरियस नॉट अ इजी कैरेक्टर, सो बिकॉज जौहर हो परंपरा हो या दहनम हो नक्सलाइट, आई एम ऑलवेज द एक्शन एक्चुअली आई लाइक इट एक्चुअली. And even RGV sir is giving opportunity to you a lot. What's the secret behind that? सीक्रेट बिकॉज वही सेम एक्चुअली मैंने अभी बिफोर बताया कि हम लोग ऑलवेज कैमरा एंड सीरियसनेस एंड डिसिप्लिन, बिकॉज सर सेट पे रहना मतलब ऑलवेज फोकस, वन टेक, ऑल डायलॉग याद करना, सो इसलिए सर मुझ पे मुझे सर प्रोजेक्ट देते चैलेंजिंग कैरेक्टर, बिकॉज मैं उस कैरेक्टर में इन्वॉल्व हो जाती हूँ. ये मेरा एक प्रॉब्लम है कि जब भी आउटसाइड भी जब मैं प्रोजेक्ट करती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हूँ. या आप माँ इस्टम डेंजरस देखो या आप जौहर देखो या मल्ली मोदलैंदी, तो ऑलवेज लॉयर कैरेक्टर, स्पोर्ट्स कैरेक्टर, टॉम बॉय कैरेक्टर, पॉलिटिशियन कैरेक्टर, जो भी मैंने वंगावीटी के टाइम पे किया था, तो ऐसे हो जाता है एक्चुअली, सो मैं इन्वॉल्व हो जाती हूँ. यस, एंड मुझे एक्चुअली सच बताओ ऑनेस्टली मुझे एक्टर बनना है, गुड एक्टर. मतलब अगर मैंने कभी ऑडियंस का मेरे फैंस की अगर मैंने दिल जीता है, सो एक्टिंग के वजह से, या ग्लैमर ऑफ कोर्स मैटर करता है, बट एक्टिंग मैटर करता है. He is a great actor. नॉट ग्रेट एक्टर, मुझे एक्टिंग से ऑडियंस का दिल जीतना है. ये मेरा सोच है. यस, कि अगर मुझ पे कोई प्रोड्यूसर ट्रस्ट किया तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनको 100% दूँ, मैं इन्वॉल्व हो जाऊँ और उसमें फोकस रहूँ उस कैरेक्टर को. इसलिए मैं जब मुझे कुछ कैरेक्टर मिलता है सब मैं भूल जाती हूँ, ऑनली फोकस दिस कैरेक्टर. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇక ఈ మా ఇష్టం మూవీ అనేది సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను, అండ్ అలాగే మీకు చాలా ఆపర్చునిటీస్ కూడా వచ్చి మీరేంటో ప్రూవ్ చేసుకోవాలని కూడా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చూసారు కదండి, సో డేంజరస్ గర్ల్స్ అయిన నైనా గారితో ముచ్చట్లు ఎలా ఉన్నాయో, సో మరో గెస్ట్తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను. అంటిల్ దెన్, బాయ్ బాయ్.